Good morning, children. Today we are going to study the next part of the chapter, that is technological and institutional reforms. Up to now we have completed about the type of farming, methods of farming and different type of crops according to the seasons. Now next topic which we have to study today, that is technological and institutional reforms. Technological and institutional reforms means the steps taken by the government to bring about improvement in agriculture as termed institutional and technological reforms. Technological reforms means the reforms which is done in the use of technology, right? In earlier with the technology which were used that were very less, या ये कह सकते हैं कि only the farming which was done on a simple ways, right? बुलोक कार्ट्स, फ्लो और ये इस टाइप के जो इम्प्लीमेंट्स थे उसका यूज़ करके एग्रीकल्चर को किया जाता था। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसमें वेरिएशंस आने लगे, राइट? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होने लगा, धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ होने लगे। पहले क्या था कि द फार्मर हु अर्लियर यूज्ड बकेट्स एंड वाटर व्हील्स, राइट? नाउ दे start using submersible pumps, monoblocks, solar pumps और ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर मेथड। तो पहले के ज़माने में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मेनली they were using simple things like bucket to pour the water in the farm, as well as they were using the pulley through which they were taking out the water from the well, and then they were using in farms, right? But now lots of facilities are there, lots of different technologies are used, through that the farming becomes easier compared to the previous time. Or even in olden time people were not using the fertilizers, right? Or mainly they were based on organic material. But now we have different type of chemical fertilizers available, right? Like DAP, nitrogen, phosphorus, this type of lots of fertilizers are there which are done according to the requirement of the land or is according to the requirement of the crops, right? But पहले ऐसा नहीं था, तो mostly they were using the old techniques. Even sometimes organic manure were used, but now mostly chemical fertilizers are used which are spoiling the fertility also sometimes. So now also awareness has increased in the people that it is good to use organic manure. So different type of fertilizers were used, as well as different government institutions and NGOs are there who are giving information to the farmers that which type of technique should be used, in which way they have to carry out farming, right? Different type of techniques were used in farming, so that they can get abundant crop production, as well as the quality of the crops which comes, that is also good. In village, gram sevaks are there who are guiding the farmers about the new agricultural researches and new techniques. एग्रीकल्चरल रिसर्चेस बहुत सारे होते रहते हैं, तो इसकी अवेयरनेस देने का काम करते हैं वो ग्राम्य एरियाज़ मीन्स विलेज एरियाज़ में ये काम ग्राम सेवक का होता है. दे आर गाइडिंग द पीपल टू डू द वर्क. As well as different type of agricultural universities are also there, which has been established in every state to teach students about agriculture and conduct researches. तो अलग अलग हर एक स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड एग्रीकल्चरल कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुई है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड
एजुकेशन प्रोवाइड करती है, along with that they are doing the work of researches, right, कि कैसे काम करना चाहिए या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अलग टाइप की लैंड्स होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिशियस होते हैं, राइट, तो उनके रिलेटेड भी होता है काम और सिखाया जाता है. इवन यू कैन चूज एज ए सब्जेक्ट ऑल्सो एग्रीकल्चर. नाउ इट इज़ अवेलेबल इन क्लास 10th, it is given. So agriculture as a subject also people are studying, and that can be used for different researches. Even some of the universities which are famous are Dantewada, Junagadh, Anand and Navsari, which are located in Gujarat, and these universities are always carrying out research works and prepare new experts in agriculture. तो ये जो चीज़ें हैं उसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, राइट, और टेक्निकल रिफॉर्म्स, कि नई नई क्या ऐसी टेक्निकें यूज़ करें कि जिससे बेटर और बेटर वर्क होता जाए, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और फार्मर्स को भी बेनिफिट हो. ओके, देन फॉर दैट वन इंस्टीट्यूशन वर्क्स, दैट इज़ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, और दूसरी है DARE, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. दीज इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें उसमें हेल्पफुल हो रही है, राइट. तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मीन्स ऐसे रिफॉर्म्स जिससे फार्मर्स नई टेक्निक्स के साथ वर्क करें. तो हार्डवर्क भी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, हार्डवर्क बिकम्स ईजियर, राइट. इतना सारा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता जो पहले के फार्मर्स को करना पड़ता था, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल. और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा वर्क है, जो एफर्ट है वो कम हो जाता है, और उसके कंपेयर टू हम ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, राइट. मीन्स थोड़ी सी स्किल्स का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग जो पहले काम करते थे उससे बेटर कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फार्मिंग पहले कैसे होता था, स्पेशली सिकल, स्पेड, हो, दैट टाइप ऑफ implements were instruments were used, and then bullock cart maximum were used to and plugging में भी. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, जैसे कि थ्रेशर, ट्रैक्टर, उस टाइप के जो हार्वेस्टर्स है उनका यूज़ किया जाता है. पहले सारा काम हाथों से करना पड़ता था, अब हमारे पास अलग अलग मशीनरीज अवेलेबल है. उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र्स, हाइब्रिड सीड्स मतलब कि ऐसे सीड्स के जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसको एक लेबोरेटरी में चेक किया हुआ, उसके ऊपर रिसर्चेस किए हुए सीड्स, ताकि वो सबसे अच्छा प्रोडक्शन दे और क्वालिटी भी मेंटेन रहे. फिर BT सीड्स जो स्पेशली कॉटन के लिए यूज़ होता है. देन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ होता है आजकल, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए. उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन मेथड है, और ग्रीन हाउसेस, दैट ऑल्सो यू माइट हैव सीन, राइट, कि ग्रीन हाउसेस का यूज़ भी किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो किया जाए. ओके, ये टेक्निकल रिफॉर्म्स. देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, द रिफॉर्म्स कनेक्टेड टू द लैंड ओनरशिप, राइट. लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर कंसिडर्ड टू बी द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. कौन से रिफॉर्म्स? लैंड ओनरशिप, लैंड टीलिंग एक्ट था, आपको पता होगा कि पास्ट में, राइट, उसके लिए गोदान मूवमेंट किया था विनोबा भावे ने. तो लैंड ओनरशिप, पहले क्या था, ज़मींदारी सिस्टम थी, तो मैक्सिमम लैंड वेयर वॉज कवर्ड बाय ज़मींदार्स, राइट. तो वो सारी चीज़ें के मालिक थे वो ज़मींदार थे, और फार्मर जो वहाँ पे काम करते थे उनको सिर्फ उसकी रोज़गारी ही मिल रही थी. पर
with this movement a change has occurred and that is called land ownership. तो उसका मतलब तो उसमें ये हुआ कि जो भी फार्मर जिस भी ज़मीन में काम करते थे उनको ये उसकी ऑनरशिप दी गई, राइट। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। उसके अलावा सब्सिडीज़ दी जाती है क्रॉप प्रोडक्शन, एवं इंश्योरेंस आर ऑल्सो गिवन, राइट, कि फार्म में भी जो क्रॉप्स है उनके इंश्योरेंस होते हैं और वो इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस की वजह से फार्मर सेफ़ होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है या कभी कभी बारिश नहीं होती है तो पूरा जो उन्होंने क्रॉप ग्रो किए हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए उनको इंश्योरेंस भी दिया जाता है। और जो पुअर फार्मर्स है उनको नई नई चीज़ें, सीड्स और फर्टिलाइज़र उन सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए, so that were also provided by the government. So these are the facilities. Then government has discarded landlordism. Landlordism means जमींदारी। ज़मींदारी को ख़त्म कर दिया जिसमें फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। जितना भी फार्म प्रोडक्ट्स होता था उसका 1/4 पार्ट फार्मर को मिलता था और उसका बाकी का जो पार्ट है, राइट, वो 3/4 है वो ज़मींदार खुद ले लेता था। तो उसमें फार्मर्स को अपने हिसाब से कुछ मिलता नहीं था, पर उसके एफर्ट्स ज़्यादा हो रहे, मीन्स मजदूरी ज़्यादा करते थे, उसके हिसाब से उनको कोई बेनिफिट्स नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये लैंडलॉर्डिज़म का जो सिस्टम था वो निकाल दिया, राइट। और दूसरा है लैंड टू द टीलर्स, मीन्स लैंड टेनेंसी एक्ट लगाया गया। अकॉर्डिंग टू दैट द लैंड टीलर हैव बीन गिवन राइट टू बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। जैसे लैंड ओनरशिप है वही, राइट, कि लैंड जिस लैंड में काम करते थे उसको उस लैंड को दे दिया गया। इसकी वजह से वो फार्मर्स की जो पुअर कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई। देन डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज़ बीन रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट। तो लैंड ओनर्स की जो डिस्पैरिटी थी उसके लिए रिमूव किया गया लैंड सीलिंग एक्ट। तो अब जिसकी ज़मीन है उसी के सारे राइट्स है, उसी के सारे अधिकार है और वो अपने हिसाब से अपने फार्म में प्रोडक्शन कर सकता है। इवन फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड नेशनलाइज्ड और कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। तो फार्मर्स को स्पेशल फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है क्रॉप सब्सिडी, राइट, क्रॉप्स के लिए सब्सिडीज़ दी जाती है और ये सारा काम किसान क्रेडिट कार्ड की से होता है। और दूसरा कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, नेशनलाइज्ड बैंक्स है, ये बैंक्स भी फार्मर को लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो क्रॉप प्रोडक्शन कर सके और जब उसकी फसल रेडी हो जाए वो सेल करे, उसके बाद उसका पेमेंट कर सकते हैं। देन फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। उस स्कीम के तहत जो फार्मर्स का क्रॉप्स है उनके ऊपर उनको इंश्योरेंस दिया जाता है। एंड व्हेन ए क्रॉप फेल ड्यू टू ड्रॉट और थ्रू एक्सेसिव रेन फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, राइट। तो ये अभी की सिचुएशन ये सी है, राइट, कि हैवी रेनफॉल हुआ है, एक्सेसिव रेनफॉल है, उसकी वजह से बहुत सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, दैट इज़ कॉल्ड अ हेल्प विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जितने भी फार्मर की सारी जो फसलें बर्बाद हुई है उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। एंड by providing legal support, an open auction process is made widespread for the sale of farm products in the marketing yards. मार्केटिंग यार्ड्स में जो भी फार्मर्स अपनी प्रोडक्ट सेल करने आते हैं उनके लिए ओपन ऑक्शन प्रोसेस है। ओपन ऑक्शन प्रोसेस को बोलते हैं हराजी रखी जाती है, राइट। आप कभी ना कभी तो यार्ड में गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि हराजी रखी जाती है और उसका एक प्राइस है वो फिक्स किया जाता है कि भाई इससे मिनिमम प्राइस में फार्मर को प्रोडक्ट सेल नहीं करना, क्योंकि बहुत ही कम अगर प्राइसेस होंगे तो फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उसकी वजह से ओपन ऑक्शन रखा जाता है ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। देन उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस, ट्रांसपोर्टेशंस एंड कम्युनिकेशंस, राइट। ये सारी चीज़ें भी दी गई है
फैसिलिटीज़, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फार्मर्स की खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसकी वजह से फार्मर्स को कभी भी हेल्प चाहिए तो वो उसमें से लोन ले सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर मार्केट एसोसिएशंस है जो मार्केट के फेवर में काम करते हैं, जो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है उसको कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ता है क्योंकि उसको फुल थ्रू आउट द सीज़न वी हैव टू यूज़, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हर एक की ऐसी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो पूरे साल की चीज़ें अपने घर में स्टोर कर सकें, और मार्केट में ये सेलिंग होता रहता है, तो उसके लिए भी एक एसोसिएशन ज़रूरी है। उसके अलावा वेयर हाउसेस जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन है, वो आपको पता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू सेंड वन थिंग फ्रॉम द सेंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए, और कम्युनिकेशंस भी इसके लिए। और ये सारी चीज़ें फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है विथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। उसके लिए उनको कम से कम रेंट देना होता है ताकि वो अपनी चीज़ें आराम से रख सके, वहाँ पे स्टोर कर सके। जैसे कि ग्राउंडनट अभी है तो पूरी की पूरी ग्राउंडनट अगर प्राइजेस अच्छे नहीं आ रहे तो डेफिनेटली फार्मर्स विल नॉट गोइंग टू सेल इट, तो दैट थिंग्स दे वांट टू कीप समवेयर, राइट। सो फॉर दैट दे कैन यूज़ वेयर हाउस or sometimes the things like potato or any other vegetables which they want to store for few days, for that they can use cold storages। तो ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है ताकि फार्मर्स को लॉस सहना ना पड़े। उसके अलावा सम ऑर्गेनाइजेशंस है विच आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स, राइट। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस फार्म प्रोडक्ट को बाई करती है, जो फार्मर्स के पास से ख़रीद लेती है ताकि मार्केट में उसकी वैल्यूज़ डाउन ना हो। उसमें है NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो नाफेड के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा दूसरी है ग्रोफेड, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, राइट। और दूसरा है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस है विच हेल्प द फार्मर टू डू द वर्क, right, and they can sell their product with a good prices in the market. So these type of facilities are given to the farmers so that they can earn maximum profit and they can earn maximum money, right. These two technical reforms and institutional reforms, these two reforms में से कोई भी एक रिफॉर्म्स 5 मार्क्स में ज़्यादातर बोर्ड की एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। सो दिस यू विल हैव टू प्रिपेयर वेल, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल रिफॉर्म्स मतलब जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं वो रिफॉर्म्स, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड है, मीन्स जो भी चेंजेस है, राइट। सेलिंग करना, प्रोडक्ट को कहाँ रखना, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके लिए रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको रिमूव किया गया, लैंड टेनेंसी एक्ट है, लैंड सीलिंग एक्ट है, फिर किसान क्रेडिट कार्ड है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स है जो फार्मर्स को सपोर्ट करती है। उसके अलावा उसको इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फिर हाइब्रिड सीड्स और वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करती है जिससे उनकी प्रोडक्शन गुड हो, अच्छी हो, राइट। सो दिस 2 reforms you will have to study nicely so that if a question comes with 5 marks you can write point to point.